Hello everyone. Today's topic is history taking of the eye patient. Ophthalmic clinical case includes demographic data, chief presenting complaints, history of present illness, past history, personal history, family history, journal physical and systemic examination, ocular examination. Demographic data. It includes name, address, age, sex, occupation, religion. Name and address for the identification of the patient, age and sex for noting down and ruling out the particular disease pertaining to different age groups and a particular sex. Occupation. It is very important point to note down the occupation of eye patient because ocular injury and trauma due to foreign bodies have typical pattern in factory workers, sport persons, farmers, and computer vision syndrome in computer professionals. Heat cataract in glass factory workers. Religion. Recording the religion of the patient may be helpful in ascertaining the disease which are more common in a particular community. Next is chief presenting complaints. It should be written in a chronological order. Most common chief presenting complaints are defective vision, asthenopic symptoms, pain, diplopia, watering or discharge from eyes, photophobia, deviation of the eye, colored halos, redness, burning, itching, foreign body sensation, black spots, distorted vision. History of present illness. The patient should be encouraged to narrate their complaints in detail and the examiner should be patient's listener. While taking history, the examiner should try to make a note of following points about each complaint. Mode of onset with duration, severity, progression, accompaniment of each symptom. History of past illness. History of similar ocular complaint in the past. ये मोस्टली उन डिजीज में देखने को मिलता है जो कि पहले हम ट्रीट कर चुके हैं जिनके चांसेस रीअकर होने के मैक्सिमम होते हैं लाइक एज हर्पिस सिम्प्लेक्स कैराइटिस, यूवाइटिस, रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन्स. हिस्ट्री ऑफ सिमिलर कंप्लेंट इन अदर आई. इट इज इम्पॉर्टेंट इन बायलेटरल कंडीशन सच एज यूवाइटिस, senile cataract, retinal detachment. History of trauma to the eye in the past may explain occurrence of lesions such as delayed rosette cataract and retinal detachment. History of any ocular surgery in the past. History of any systemic disease in the past. History of drug intake and allergies is also important. Past history. Ask if the patient has these diseases: diabetes mellitus, hypertension, ischemic heart disease, tuberculosis, bronchial asthma, drug allergies. These diseases also affect the eye. Personal history. Ask from the patient about bowel and bladder movement, currently on any medications or not, addictions, diet, menstrual history in case of female patient. Family history. Disease that run in families. Genetic disease, hereditary disease. It includes congenital cataract, ptosis, squint, corneal dystrophy, glaucoma, refractive errors.
visual acuity. It is for distance vision and near vision. For distance vision, simple picture chart for children, Landon-C chart, E-chart for illiterate person. Near vision, Jaggers chart, Roman test type, Snell's near vision test type. Next we see the parts of human eye. Here is sclera, this is tear duct, this is cornea, this is bottom eyelid, this is top eyelid, this is iris, this is pupil, and these are eyelashes. Examination of the eyebrows. नॉर्मल कंडीशन में आईब्रो का लेवल सिमेट्रिकल होता है और दोनों सीलिया आईब्रो में इक्वली प्रेजेंट होते हैं, बट इन केसेस ऑफ टॉसिस level is increased in one eye in comparison to another eye. Next we see the cilia. मेराडोसिस की कंडीशन में आईब्रोज के हाफ सीलिया एब्सेंट होते हैं, ये दोनों आई में प्रेजेंट है. एग्जामिनेशन ऑफ द आईलिड. इसमें सबसे पहले हम पोजीशन चेक करते हैं. जो अपर आईलिड होता है वो कॉर्निया के 1/6 पार्ट को कवर करता है. अगर ये 1/6 से ज़्यादा पार्ट को कवर करता है तो टॉसिस की कंडीशन हो जाती है. और जो लोअर आईलिड होता है जो लिम्बस को टच करेगा. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ आईलिड. नॉर्मल जो ब्लिंकिंग टाइम होता है वो 12 से 16 1 मिनट में, पर मिनट बोल सकते हैं, पर 1 मिनट में 12 से 16 बार आई ब्लिंक करती है. इसमें हमें ये एग्जामिन करना होता है कि जो ब्लिंकिंग है वो इंक्रीज हो रखी है या डिक्रीज हो रखी है. नेक्स्ट इज लिड मार्जिन. जो इस पिक्चर में लिड मार्जिन दिखा रखी है ये नॉर्मल लिड मार्जिन. अगर इसकी बेंडिंग अंदर की साइड हो जाती है तो हम इसे एंट्रोपियन बोलेंगे. अगर इसकी बेंडिंग आउटवर्ड हो जाती है तो इसे एक्ट्रोपियन बोलेंगे. नेक्स्ट इज एब्नॉर्मैलिटीज ऑफ स्किन. जो आईलिड की स्किन है यहाँ पे कोई लेजन्स मिल जाए या कोई वार्ट्स मिल जाए या कोई यहाँ पे अल्सर मिल जाता है या यहाँ कोई सिस्ट हो, ये कंडीशन हमें एग्जामिन करनी होती है. नेक्स्ट इज पल्पेबल एपरेचर, मीन्स दिस एरिया एंड दिस एरिया. इसमें ये एग्जामिन करना होता है कि ये एरिया वाइडर है या नैरो है. देन एग्जामिनेशन ऑफ द लैक्राइमल एपरेटस. जो लैक्राइमल एपरेटस की एग्जामिनेशन है वो मेनली उन पेशेंट में करते हैं जिनमें एपिफोरा की कंप्लेन हो, कॉर्नियल अल्सर की हो, तब हम इसकी लैक्राइमल एपरेटस की एग्जामिनेशन करते हैं. सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं. यहाँ पे एक्सक्रीटरी लैक्राइमल डक्ट होता है, ये यहाँ से सिक्रीट करेंगे जो कि लैक्राइमल ग्लैंड के अंदर जाएगा. देन इट गोज टू लैक्राइमल सैक. हियर इज लैक्राइमल सैक एंड दिस इज लैक्राइमल लेक एंड इट कनेक्ट्स टू द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट. फर्स्टली हम इसमें क्या देखते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ लैक्राइमल सैक एरिया. जो सैक एरिया है वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं दिख रही, कोई स्वेलिंग तो नहीं दिख रही, इसको हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं. देन इंस्पेक्शन ऑफ द लैक्राइमल पंक्टा. जो यहाँ पे लैक्राइमल पंक्टा प्रेजेंट होता है उसके अंदर कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कोई स्टीनोसिस तो नहीं है, वो चेक करते हैं. देन वी डू द रिगर्जिटेशन टेस्ट, मीन्स यहाँ पे प्रेस करके इसको चेक करते हैं. लैक्राइमल सिरिंजिंग, कोई ब्लॉकेज होती है तब हम इसमें लैक्राइमल सिरिंजिंग भी चेक करते हैं. देन अदर टेस्ट अगर इंडिकेटेड हो तभी हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए, जैसे जॉन्स डाई टेस्ट है, टेस्ट 1 and 2, डेक्रोसिस्टोग्राफी एक्सेट्रा एंड फर्दर टेस्ट हम इसमें कर सकते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ द आईब्रो. फर्स्टली वी सी द पोजीशन ऑफ द आईब्रो. दोनों आईब्रो सिमेट्रिकल प्रेजेंट होते हैं. आई ऑर्बिटल नॉर्मल कंडीशन. अगर आई ब्लजिंग है, मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा निकली हुई आई बॉल, तो वो एक्सोप्थैल्मस की कंडीशन में देखने को मिलेगी.
अगर आई शंकन है, अंदर की तरफ ज़्यादा घुसी हुई है, तो एनोप्थेल्मस की कंडीशन है। देन सेकेंडली वी सी द साइज ऑफ आई होल, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी से हम इसे चेक करते हैं। अगर साइज बड़ा हुआ है तो मैक्रोप्थेल्मस की कंडीशन होगी, अगर साइज स्मॉल है तो माइक्रोप्थेल्मस की कंडीशन होगी। नेक्स्ट वी सी द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। जो मूवमेंट ऑफ आई बॉल है उसको यूनिलोकरली, ओक्यूलरली और बायोनोकुलरली दोनों चेक करते हैं। देन विजुअल एक्सिस ऑफ द आई बॉल। नॉर्मल कंडीशन में तो दोनों आई बॉल साइमल्टेनियसली मूव करती है, बट जो स्क्विंट की कंडीशन होती है उसमें वन आई का डेविएशन होता है। Examination of the conjunctiva. Firstly, we see the examination of bulbar conjunctiva. Can be examined by simply retracting the upper lid with index finger and lower lid with thumb of left hand. इसमें हम क्या करेंगे, जो इसका अपर आईलिड होता है उसको इंडेक्स फिंगर से ऊपर करेंगे एंड लोअर लिड को किससे करेंगे, थंब से करते हैं लेफ्ट हैंड पे, एंड देन हम उसमें कुछ एग्जामिन करें। सेकेंड इज लोअर पल्पेब्रल कंजक्टिवा and lower fornix can be examined by just pulling down the lower lid and instructing the patient to look up. इसमें हम क्या करते हैं कि जो लोअर लिड होता है उसको नीचे की तरफ पुल करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि ऊपर देखें। थर्ड इज अपर पल्पेब्रल कंजक्टिवा कैन बी एग्जामिन्ड ओनली आफ्टर इवर्टिंग द अपर आईलिड। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो अपर आईलिड होता है उसको इवर्ट करना होता है, ऊपर की तरफ मोड़ना होता है। इवर्जन ऑफ द अपर लिड कैन बी कैरिड आउट वन हैंड टेक्निक और टू हैंड टेक्निक। इसे हम एक हाथ से या फिर टू हैंड टेक्निक से इवर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ द स्क्लेरा। नॉर्मली एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा कवर्ड बाय बल्बर कंजक्टिवा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो एंटीरियर पार्ट होता है स्क्लेरा का वो बल्बर कंजक्टिवा से कवर्ड होता है। अब इसमें एबनॉर्मलिटीज देखते हैं। एक तो डिस्कलरेशन होगा, मीन्स जो नॉर्मल कलर होता है स्क्लेरा का वो क्या होगा, वाइट कलर होता है, बट इन जॉन्डिस की कंडीशन में यही स्क्लेरा येलोइश हो जाता है। दिस इज फर्स्ट एबनॉर्मलिटी। सेकंड, इन्फ्लामेशन। जो स्क्लेराइटिस और एपिस्क्लेराइटिस की कंडीशन में इसमें इन्फ्लामेशन होती है स्क्लेरा के अंदर। थर्ड इज स्टेफाइलोमा, मीन्स थिन्ड आउट ब्लजिंग एरिया ऑफ स्क्लेरा, मीन्स जो पतला एरिया होता है स्क्लेरा का वो क्या होगा, बाहर की तरफ ब्लज आउट हो जाता है। लास्ट इज ट्रॉमेटिक परफोरेशंस। देन एग्जामिनेशन ऑफ द कॉर्निया। इसमें सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, साइज। ये क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। इसका जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर चेक करते हैं, तो वो जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है वो 11.7 mm होता है और वर्टिकल डायमीटर 11 mm होता है। नेक्स्ट, ये तो इसकी नॉर्मल कंडीशन है। अगर अबनॉर्मल कंडीशन होगी तो जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है वो 10 mm से कम मिला तो माइक्रोकॉर्निया की कंडीशन हो जाएगी। अगर वो 13 mm से ज़्यादा मिलता है तो मिगैलोकॉर्निया की कंडीशन मिलती है। नंबर 2, हम इसकी शेप देखते हैं। जो इसकी नॉर्मल शेप होती है वो वॉच ग्लास के जैसी है, विद यूनिफॉर्म पोस्टीरियर कर्व इन इट्स सेंट्रल एरिया। यूनिफॉर्म पोस्टीरियर कर्व इन इट्स सेंट्रल एरिया। अब इसकी जो अबनॉर्मल कंडीशन होती है, अगर ये ब्लज आउट होता है ग्लोब के जैसे तो हम इसे कैरेटोग्लोबस बोलेंगे। अगर ये कोन की शेप में ब्लज आउट हो रहा है, अगर ये कोन की शेप में ब्लज आउट होगा ऐसे तो हम इसे कैरेटोकोनस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट इज सरफेस। जो कॉर्निया का सरफेस होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अगर कोई अबनॉर्मलिटीज है तो वहाँ पे हमें एब्रेशन देखने को मिल सकते हैं, लेजन्स देखने को मिल सकते हैं, या वहाँ पे कोई अल्सर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी। नॉर्मल कंडीशन में कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी लॉस हो चुकी है तो वहाँ पे 3 कंडीशन देखने को मिल सकती है हमें। कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर हो सकते हैं, कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है। फर्दर और कंडीशंस भी हो सकती है, हम इनमें मेनली यहाँ पे 3 कंडीशंस देखते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं सीन। सीन मीन्स मतलब जो ब्राइट शाइनी स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्निया का। नॉर्मल कंडीशन में जो कॉर्निया है वो क्या होगा, ब्राइट शाइनी स्ट्रक्चर होता है। अगर ड्राई आई की कंडीशन है तो उसमें इसका लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ शाइनीनेस ऑफ कॉर्निया। नेक्स्ट इज कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन मीन्स नॉर्मली कॉर्निया क्या होता है, ए वेस्कुलर होता है। अगर वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी है तो वहाँ पे दो कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं, सुपरफिशियल कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन और डीप कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। इज कॉर्नियल सेंसेशंस। कॉर्नियल सेंसेशन मीन्स जो कॉर्निया है वो क्या होता है, सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन अगर उसकी सेंसिटिविटी लॉस होती है तो वो मेनली केरेटाइटिस की कंडीशन में, डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में, लेप्रोसी की कंडीशन में ये क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। नेक्स्ट हम बैक ऑफ कॉर्निया को एग्जामिन करते हैं और कॉर्नियल एंडोथेलियम को एग्जामिन करते हैं। देन एग्जामिनेशन ऑफ द एंटीरियर चैम्बर। जो एंटीरियर चैम्बर है, जो कि ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। इसकी जो एग्जामिनेशन है मेनली हम गोनियोस्कोप और स्लिट लैंप से करते हैं। इसके जो कंटेंट्स होता है मेन एक्वस ह्यूमर, ये इसका मेन कंटेंट है। बट अगर इसमें कोई एबनॉर्मल कंटेंट प्रेजेंट है, जैसे हाइपोपायन मतलब वहाँ पे पस प्रेजेंट है एक्वस ह्यूमर के साथ, हाइपाइमिया मीन्स वहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, फॉरेन बॉडी कोई अदर फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है, अदर मैनी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं मतलब एबनॉर्मल कंटेंट्स के अंदर। बट मेनली हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स को फोकस किया। नॉर्मल डेप्थ ऑफ द एंटीरियर चैम्बर 2.5 mm होती है सेंटर से। अब इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज क्या होंगी, 3 टाइप की होंगी, या तो वो स्वेलो हो सकता है, या वो डीप हो सकता है एंटीरियर चैम्बर, या इरेगुलर हो सकता है। अब इनके अलग अलग हम कोजेस देखते हैं। स्वेलो हो एंटीरियर चैम्बर तो हाइपर मेट्रोपिया की कंडीशन में हो सकता है, प्राइमरी नैरो एंगल ऑफ ग्लूकोमा की वजह से हो सकता है, मैलिग्नेंट ग्लूकोमा की वजह से हो सकता है। अगर वो डीप है एंटीरियर चैम्बर, उसके कोजेस क्या होंगे, मायोपिया, कैरेटोग्लोबस, कैरेटोकॉनस। अगर वो इरेगुलर है एंटीरियर चैम्बर तो एडहेरेंट ग्लूकोमा, टिल्टिंग ऑफ लेंस की कंडीशन। देन हम देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द आइरिस। ये जो आइरिस वाला पार्ट है इसकी एग्जामिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कलर ऑफ आइरिस। जो कलर होता है आइरिस का वो डिफरेंट रेसेस में वेरी करता है। वो ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है, डिफरेंट कलर हो सकते हैं इसके। ड्यू टू पिगमेंटेशन की वजह से हम डिफरेंट रेसेस में ये वेरी करते हैं। अगर नॉर्मल कलर के कंपैरिजन में जो कलर है वो लाइटर भी हो सकता है, डार्कर भी हो सकता है और मोर डार्कली भी हो सकता है। डिफरेंट डिजीज कंडीशन इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ नॉर्मल आइरिस, जैसे कि हमें इस इमेज में दिख रहा है वो इसके पैटर्न होते हैं। नेक्स्ट एनी आइरिडिया मीन्स आइरिस एब्सेंट होगा, जो कि हम इस इमेज में दिखाई दे। सिनेची मीन्स adhesions of iris to other intraocular structures. Rubeosis iridis means new vessel formation on iris, जैसा कि हमें इमेज में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वेसल्स फॉर्म हो जाते हैं आइरिस के अंदर। नेक्स्ट इज आइरिस सिस्ट। इसमें आइरिस के अंदर सिस्ट फॉर्म हो जाएगी। अ होल इन आइरिस, आइरिस के अंदर होल फॉर्म हो जाएगा। नोड्यूल ऑन द आइरिस सरफेस के ऊपर नोड्यूल फॉर्मेशन होने लग जाता है, जो कि यूवाइटिस की कंडीशन में, केराइटिस की कंडीशन की वजह से एज ए रिजल्ट हम मान सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ द प्यूपिल। फर्स्टली वी सी द नंबर। नॉर्मली प्यूपिल का नंबर 1 होता है। अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो पोली कोरिया बोलते हैं उसे। लोकेशन सेंटर में होता है, स्लाइटली थोड़ा टिल्टेड मान सकते हैं। साइज 3 to 4 mm नॉर्मल कंडीशन में। अगर वो छोटा होता है तो वो मियोसिस की कंडीशन के अंदर होता है। अगर उसका साइज बड़ा हुआ है तो माइड्रियसिस की
कंडीशन के अंदर उसका साइज बढ़ा हुआ देखने को हमें मिल सकता है। जो शेप है, नॉर्मल उसकी शेप क्या होती है, सर्कुलर शेप होती है प्यूपिल की। एंड कलर, नॉर्मल जो कलर होता है प्यूपिल का ग्रेश ब्लैक कलर होता है। अगर डिजीज्ड कंडीशन लाइक एज एफेकिया की कंडीशन के अंदर क्या होगा, जेट ब्लैक कलर होता है। ग्रेश वाइट इमेच्योर सेनाइल कॉर्टिकल कैटरेक्ट के अंदर ग्रेश वाइट कलर हो जाता है प्यूपिल का। इसमें हम देन प्यूपिलरी रिएक्शंस चेक करते हैं बाय डायरेक्ट रिफ्लेक्स। जो प्यूपिलरी रिएक्शंस हैं वो हम डिफरेंट टेस्ट से करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स से, कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स से, स्विमिंग फ्लैश लाइट टेस्ट से या नियर रिफ्लेक्स से चेक हम करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ द लेंस। लेंस की प्रॉपर पोजीशन चेक एग्जामिन करेंगे, शेप ऑफ लेंस को एग्जामिन करेंगे, कलर को, ट्रांसपेरेंसी को, डिपॉजिट ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस एंड परकिंजी इमेज टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। एट लास्ट हम इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करेंगे, फंडस का एग्जामिनेशन करेंगे, प्रोविजनल डायग्नोसिस करेंगे एंड देन फाइनल डायग्नोसिस करेंगे एंड देन ट्रीटमेंट पेशेंट को लिख देते हैं। थैंक यू सो मच।